Good morning, everyone. So let's start today's class with Newton's second law of motion application. So today we are going to discuss the applications of Newton's second law of motion. Okay. The first one is obtain first law of motion from the mathematical expression for the second law of motion. Means you have to obtain first law from second law. So you will start from the second law. Okay. So first just recall the statement of Newton's first law of motion. According to the Newton's first law of motion, an object tends to remain in its state of rest or of uniform motion unless and until an external unbalanced force is applied on it. जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है तब तक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है. अगर फोर्स लगेगा तभी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा. ओके. So this is the first law. Here we have to reach, and from where we have to start? From the second law. What does second law say? Says mathematical expression. What is the mathematical expression for the Newton's second law of motion? According to the Newton's second law, F is equal to m into a, where F is the force applied, m is the mass of object, and a is the acceleration produced. Okay. Now, I am substituting the value of A here. A is the acceleration. A की value is v minus u upon t. A is equal to v minus u upon t. So A की जगह I am substituting the value v minus u upon t. So और F same equal m. A की जगह बस v minus u upon t आ गया. Okay. Now this t is in denominator on the right hand side. When it goes to the left hand side, it will get multiplied with f. So f multiply t is ft equals to m multiply v is mv. Then minus sign is here. M into u is mu. Okay, bracket open कर दिया and m gets multiplied with v as well as with u. ठीक है, बीच में minus sign है. Okay. Now, when F is 0, when no external force is applied, जब कोई external force नहीं लग रहा है, F की value 0 है. Now I am putting the value of F is equal to 0 in this equation. Ft is equal to mv minus mu. So when F is equal to 0, तो F की जगह मैंने 0 लगाया, multiply T is equal to mv minus mu. 0 multiply T, m वही बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया v माइनस u. 0 मल्टीप्लाई t इज 0. ओके, इक्वल्स टू m ब्रैकेट में v माइनस u, ब्रैकेट में v माइनस u. नाउ यू सी फ्रॉम हियर m जो है मल्टीप्लाई हो रहा है v माइनस u के साथ. ओके, एंड आंसर इज 0. ये इक्वल्स टू 0 है. यहाँ तो आपका m 0 होगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई v माइनस u तभी 0 आएगा आपका. ओके, दिस 0. यहाँ तो फिर ये हो सकता है कि v माइनस u आपका 0 हो तभी ये टर्म 0 हो जाएगी. 0 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 0, तभी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा. सो इधर मास हैज टू बी 0 और दिस टर्म v माइनस u हैज टू बी 0. ओके, क्यों? तभी राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो 0 है तभी वो राइट हैंड साइड के इक्वल 0 आएगी, 0 आएगा. या तो मास 0 हो या v माइनस u 0 हो. नाउ मास कैन नेवर बी 0. मास कभी 0 नहीं हो सकता है. फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, उसका मास डेफिनेटली होगा चाहे वो नेग्लिजिबल क्यों ना हो. ओके, तो मास जो है वो कभी 0 नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. मास कैन नेवर बी 0. तो ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी हैज टू बी 0. v माइनस u को 0 होना पड़ेगा.
तभी आपका मास इंटू जीरो जीरो होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा. So mass can never be zero. So it means V minus U will be equal to 0. Okay. So mass M can never be zero. Thus V minus U will be equal to 0. Now U will goes to the other side. तो ये positive हो जाएगा. V is equal to U. V is equal to U means final velocity जो है आपकी वो initial velocity के equal ही है. मीन्स जो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with the same velocity the object is moving afterwards, means it will continue to move with that velocity only. Okay, so this is the condition. कब है ये कंडीशन? जब मेरा फोर्स अप्लाइड जीरो था, सी देन एफ इज जीरो. ये हमने कंडीशन लगा दी. जब मेरा f जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है देन वी गेट v इज इक्वल टू जीरो. मीन्स जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं करे, f जो है जीरो है, तो ऑब्जेक्ट आपका जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. अगर सपोज ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, u अगर आपका जीरो है तो v भी जीरो रहेगा. इफ u इज जीरो देन v इज जीरो. मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट and no external force is applied on it, then it will remain at rest. उसकी final velocity भी zero रहेगी. And if it is moving with some velocity, it will continue to remain with the same, continue to move with the same velocity as it was moving earlier. Okay, so this is the mathematical, you can say this is the first law of motion we have derived from second law. We have started from second law here. देखो second law से start किया, condition लगाई f is equal to zero करके and we get the first law. Okay, ठीक है. और आपका first law भी यही कहता है कि if the no external force is applied then the object will continue to remain in its state. Okay, so now the next question is, in a cricket match, why does the player lowers his hand while catching a cricket ball? अब प्लेयर जो है, क्रिकेट जब मैच होता है तो प्लेयर जो है वो बॉल को ऐसे कैच नहीं करता. अगर ऐसे कैच करेगा तो प्लेयर में गेट हर्ट. प्लेयर जो है वो बॉल को ऐसे कैच करता हुआ फिर पीछे लेकर जाता है. व्हाई सो? बाय डूइंग सो, देखो फ्रॉम दिस रिलेशन we have studied this relation, f is equal to m into a की जगह बस v minus u upon t लिखा हुआ है. अगर t की वैल्यू जो है, सपोज वैल्यू जो है वो कम है, इट इज लेस, t टाइम इंटरवल है. ओके, अगर t जो है वो आपका डिनोमिनेटर में इट्स वैल्यू इज लेस, तो फोर्स की वैल्यू विल बी मोर, क्योंकि दे हैव इनवर्स रिलेशन. अगर t बढ़ जाएगा, t इंक्रीज हो जाएगा इसकी वैल्यू, देन f विल डिक्रीज, इसकी वैल्यू f की लेस हो जाएगी. सो नाउ सी द फिगर अगेन. नाउ द बॉल इज कमिंग विद अ हाई स्पीड. इसका हाई स्पीड से आ रही है. अगर स्पीड ज्यादा है तो मोमेंटम भी इसका ज्यादा होगा. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा. और एकदम से अगर इसको कैच कर लिया जाए तो बिल्कुल बॉल की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो. एंड इन शॉर्ट टाइम मोमेंटम बिल्कुल जीरो हो जाएगा. तो अगर टाइम शॉर्ट है तो फोर्स का वैल्यू विल इंक्रीज, और प्लेयर्स के हैंड पे ज्यादा फोर्स लगने की वजह से द प्लेयर में गेट हर्ट. सो द प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, ताकि जो हाई मोमेंटम से वेलोसिटी जो है वो आपकी हाई है, मोमेंटम इस केस में हाई है, जैसे वो प्लेयर जो है बॉल को कैच करे और लोअर उसको नीचे लेकर जाता हुआ जाता है. वाई सो? ताकि जो मोमेंटम में बिल्कुल जीरो हो रहा है उसमें को टाइम लगे. मोमेंटम जो पहले हाई था वो अब जीरो हो रहा है, चेंज आ रहा है मोमेंटम में. सो जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो ज्यादा टाइम में आए. सो प्लेयर इंक्रीजेस द टाइम फॉर चेंज इन मोमेंटम. अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, फोर्स की वैल्यू विल गेट डिक्रीज. फोर्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो प्लेयर्स के हैंड पे
फोर्स ज्यादा नहीं लगेगा एंड प्लेयर मे नॉट गेट हर्ट. ओके, तो इस रिलेशन को आपने बिल्कुल अपना ध्यान से माइंड में रखना है. ओके, टाइम अगर इंक्रीज कर रहे हो तो फोर्स बढ़ेगा और इम्पैक्ट उसका होगा. ठीक है, तो द आंसर यू विल राइट इन पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, प्लेयर लोअर इन हैंड. बाय? बिकॉज बाय डूइंग सो, ऐसा करने से प्लेयर इंक्रीजेस. क्या इंक्रीज कर रहा है वो? टाइम फॉर द चेंज इन मोमेंटम, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय हिज हैंड इज लेस एंड द प्लेयर मे नॉट गेट हर्ट. ओके, next question, vehicles are provided with shockers. Explain. शॉकर्स ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में कार्स हैं, स्कूटीज हैं, बाइक्स हैं, सब में शॉकर्स लगे होते हैं. बाइक, अगर शॉकर्स नहीं होंगे, स्पीड ब्रेकर आया या अनइवन रोड है, रफ रोड है, तो उसमें जर्क लगता है और जो पैसेंजर उसमें बैठे होगा, जो भी वो राइड कर रहा होगा, तो उसकी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा और दे मे गेट हर्ट. वो राइड जो है वो आपकी कंफर्टेबल नहीं रहेगी. शॉकर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब वी आर राइडिंग ऑन द रोड, सपोज कोई स्पीड ब्रेकर आया या कोई अनइवन रोड है, जर्क लगा, एकदम से जब जर्क लगता है तो हमारे ऊपर फोर्स लगता है. ठीक है, तो शॉकर्स क्या करते हैं, वो जो फोर्स का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज कर देते हैं कि फोर्स का जो ट्रांसमिशन है, जो हम तक फोर्स लग रहा है, उसका ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स हो रहा है, उसका टाइम इंक्रीज कर देते हैं. ओके, रोड जो है वो फोर्स लगा रहा है सीट पे बैठे हुए पैसेंजर्स के ऊपर. ठीक है, अगर उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम यहाँ से अगर इंक्रीज करते रहे तो फोर्स की वैल्यू विल बिकम लेस. सो शॉकर्स क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द टाइम. टाइम किसका? ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द रोड टू द सीट्स ऑफ व्हीकल. अगर टाइम इंक्रीज होगा तो लेस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पैसेंजर्स एंड they may get a comfortable ride. Okay, और you can say कि जैसे जर्क लगा, जैसे मतलब जो व्हीकल है वो स्मूथ रोड पे मूव कर रहा है, हाई स्पीड से कर रहा है, मोमेंटम उसका हाई होगा. एकदम से अगर जर्क लगता है, एकदम से जर्क आया, अनइवन रोड आया, तो उसमें जो है एकदम से मोमेंटम में जो है अगर शॉर्ट टाइम में चेंजेस आएंगे तो फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा एंड द पैसेंजर सिटिंग इन द व्हीकल मे गेट हर्ट. अगर शॉकर्स होंगे तो उसमें मोमेंटम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज्यादा टाइम में आएंगे. इट विल टेक टाइम टू चेंज फॉर द चेंज इन मोमेंटम एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पैसेंजर्स बॉडी इज लेस एंड they get a comfortable ride. Okay, question number 29, karate player breaks a pile of bricks with a single blow. एक सिंगल ब्लो में दे ब्रेक अ पाइल ऑफ ब्रिक्स. पाइल ऑफ ब्रिक्स, हाउ? सी, सिंगल ब्लो में क्या करते हैं, प्लेयर जो है वो बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, हाई स्पीड से उसका हैंड आता है एंड एकदम से सिंगल शॉट में दे ब्रेक द पाइल. तो जब हाई स्पीड से आ रहा है तो उसका मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम होगा, हाई होगा. ओके, एंड विद अ सिंगल ब्लो मोमेंटम जीरो हो गया. सिंगल ब्लो है तो टाइम जो है वो उसमें कम लगेगा फॉर द चेंज इन मोमेंटम. सो कराटे प्लेयर जो है रिड्यूस करता है टाइम को फॉर द चेंज इन मोमेंटम. अगर टाइम रिड्यूस होगा तो फोर्स जो है वो ब्रिक्स के ऊपर वो मैक्सिमम लगेगा एंड विच ब्रेक द पाइल्स ऑफ ब्रिक्स. ओके, so these are the applications of Newton's second law of motion. You will write the answers in points. Okay, so class, I am giving you one assignment, numerical based assignment. Two questions I am giving to you. You will do this assignment in your registers only. Okay, and you will send this assignment to me on the same day. Otherwise, you will get copy from each other. You will do the assignment in short time. Try to do the assignment in short time and submit it as soon as possible. And try to do by yourself. Okay? Thank you, class, and have a nice day.